حزب اختلاف شہباز شریف لاہور میں نیب کورٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ جب مجھے نیب نے اپنے عقوبت خانے میں بلوایا اور نوٹس مجھے صاف پانی کا دے کر بلوایا انہوں نے مجھے، مگر وہاں پر آشیانہ میں بٹھا کر گرفتار کر لیا۔ اس سے پہلے 2018 کے اکتوبر سے پہلے کئی مرتبہ صاف پانی کے حوالے سے، آشیانہ کے حوالے سے ان کے سوال ناموں کا میں جواب دیتا رہا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 56 کمپنیوں کو، جو کہ ہماری حکومت میں اور اس سے پہلے بھی ماضی کی حکومتوں میں بھی بعض کمپنیاں بنی تھیں، اور خاص طور پر مجھے نشانہ بنا کر پوری قوم کے سامنے رسوا کرنے کی بھونڈی کوشش دن رات کی جاتی رہی، اور یہ کہا گیا کہ صاف پانی میں جو ایک کمپنی تھی حکومت پنجاب کی، اس میں اربوں کھربوں روپے کے جو قوم کی رقوم ہے ان کو غبن کیا گیا۔ پھر 3 سال اس کے اوپر جو صاف پانی میں جن لوگوں کو ملزم بنایا گیا ان کو گرفتار کیا گیا۔ ان میں انجینئر راجہ صاحب جو صاف پانی کمپنی کے بورڈ کے چیئرمین تھے اور ایم پی اے بھی تھے حکومت ہماری پی ایم ایل این کے، اور ان کے تمام ساتھیوں کو حکومت پنجاب کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور وہ کئی مہینے جیلوں میں رہے، اور بالآخر الحمدللہ پچھلے چند ہفتوں میں آپ نے دیکھا فیصلہ آیا آنریبل نیب کورٹ کا، جس میں انہوں نے تمام ان لوگوں کو آنریبلی ایگزونریٹ کر دیا، ان کو بالکل باوقار طریقے سے وہ رہا ہو گئے۔ مگر جس طریقے سے انہوں نے نیب کے عقوبت خانے میں کئی ماہ گزارے اور پھر جیلوں میں جس طرح وہ رہے، یہ صرف ان کے گھر والے، ان کے عزیز و اقارب، ان کے والدین، بہن بھائی، ان کے دل سے پوچھیں کہ ان کے اوپر ان سالوں میں کیا گزرتی رہی ہوگی۔ یہ فیصلہ جو آنریبل کورٹ نے جو دیا ہے اور ان کو سب کو باعزت اور طور پر رہا کیا ہے، یہ الحمدللہ میری نہیں ہے، یہ ہماری پی ایم ایل این کی حکومت کی، میاں نواز شریف کی، حکومت پنجاب کی، وفاق کی، پی ایم ایل این کے جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، ان سب کی یہ عزت ہے، ان کے سب کی یہ توقیر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رب تعالیٰ نے عطا کی۔ اور آپ فیصلہ پڑھیں تو فیصلے میں جو آنریبل جج صاحب نے جو لکھا ہے، جو انصاف کی بنیاد پر اور حقائق کی بنیاد پر جو فیصلہ دیا، ان کو بری کیا، اس حوالے سے میں آپ کو آج یہاں پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صاف پانی میں 6 اکتوبر 2018 کو مجھے نیب نے دھوکے سے اپنے عقوبت خانے میں بلوایا اور آشیانہ میں گرفتار کر لیا، اور پھر دن رات میرے خلاف پروپیگنڈا جاری رہا۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 118 یہ ایک چھوٹا پلانٹ تھا، چھوٹا منصوبہ تھا، 118 فلٹر پلانٹ صاف پانی کے، ان کا یہ کانٹریکٹ تھا۔ مئی 2015 میں اس کی جو بولیاں تھیں وہ یعنی بڈس کھولی گئیں، بڈس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بولیاں جو تھی آئی تھی، بڈس آئی تھی، وہ ان کو کھولا گیا، اور بالآخر اپریل میں یہ بڈس کھولی گئی 2015 میں، اور جولائی میں یہ کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا۔ اب میں آتا ہوں جو
جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، اور یہ کاغذ میں آپ کو ابھی آپ کے میں پیش کر دوں گا. یہ ہے 15 مئی 2015 کی بورڈ کی میٹنگ. یہ میں آپ کو کاغذ میں آپ کو ابھی یہ دے دیتا ہوں. اور اس بورڈ کی میٹنگ کو میں نے چیئر کیا تھا بطور وزیر اعلیٰ. یعنی نیب کے عقوبت خانے میں وہ الزام یہ لگاتے تھے نیب کے جو نائبین تھے کہ جی آپ کس طرح ان کمپنی کو چیئر کر سکتے تھے. او بھائی، اگر میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حکومت کے مختلف محکموں کو، ڈپارٹمنٹس کو اگر میں چیئر کرتا تھا، چاہے وہ فوڈ ہے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے، چاہے وہ ہیلتھ ہے یا ایجوکیشن ہے، اور بھائی ذرا خاموشی اختیار کر رہے مہربانی. چاہے اپنا انفراسٹرکچر ہے، روڈ ٹرانسپورٹ ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اور جو بھی ان منصوبوں کو یا ان محکموں کو میں چیئر کر سکتا تھا، تو ان کمپنیز کو جو کہ پنجاب حکومت کی، ان کو چیئر کرنے میں کون سا قانون آڑے آتا تھا. مگر وہ نیب کے عقوبت خانے میں نائبین، جن کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا، انہوں نے دن رات یہ چھوڑا کہ آپ کو تو حق ہی نہیں تھا، آپ ان کو چیئر کرتے فلاں کرتے. میں نے کہا اگر مجھے حق نہیں تھا تو چلو پھر میرے خلاف اپنا یہ بھی جرم جو ہے لگا دو، اور پھر کورٹ میں چلے گا معاملہ. بارکیف یہ میٹنگ میں نے اٹینڈ کی، اپنا چیئر کی، اور یہ منٹس ہیں. 13ویں بورڈ میٹنگ ہیلڈ آن 14 مئی 2015. اس میں یہ کلیئرلی لکھا ہے، اور میں وہ آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں. The meeting started with recitation of Quran Kareem، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ میٹنگ شروع ہوئی. اور پھر the company gave presentation on the updated status of Punjab Saaf Pani. The chairman, he apprised the chair award of contract of 20% lowest bid offer in the light of the direction of the chief minister. میں نے جب یہ بڈ کھلی تھی تو اس کو جو لوسٹ بڈر تھا وہ تھا 1 ارب اور 14 کروڑ روپے کی لوسٹ بڈ تھی 115 فلٹر پلانٹس کے لیے، 118 فلٹر پلانٹس کے لیے. 1 ارب 14 کروڑ روپے تھی لوسٹ بڈر جو تھا، یعنی سب سے کم بولی دینے والی کمپنی. اور اس کا کمپنی کا نام تھا KSP پمپس. اور اس کے چیئرمین یا سی او کو بھی 3 مہینے نیب کے حکومت خانے میں رکھا گیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح ظلم اور زیادتی نیب نیازی گٹھ جوڑ نے ڈھائی بے گناہ لوگوں کے اوپر، جن کا کوئی قصور نہیں تھا، قطعاً کوئی قصور نہیں تھا. ان کے سی او اور چیئرمین کو بھی رکھا انہوں نے نیب کے حکومت خانے میں، اور بس ایک ہی بات کرتے تھے کہ شہباز شریف کے خلاف تم بیان دے دو، جھوٹا سچا ہم تمہیں کچھ نہیں. بھی خاموشی اختیار کریں نا آپ پلیز. جھوٹا سچا بیان دے دو اور ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. کسی کو کہا کہ جناب آپ شہباز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، ہم آپ کو چیف سیکرٹری پنجاب لگا دیں گے. نہ جانے کیا کیا نیب کے حکومت خانے میں عمران نیازی نیب گٹھ جوڑ نے مجھے نشانہ بنانے کے لیے اور متون کرنے کے لیے کیا کیا آفریں دیں اور لالچ اور ظلم اور ستم کیے. تو یہ ہے 1 ارب 14 کروڑ روپے کی لوسٹ بڈ. اب نیب کا قانون یہ کہتا ہے، نیب کا پیپرا کا قانون یہ کہتا ہے کہ پبلک پروکیورمنٹ جو ہے، جو قانون صوبوں کے لیے، وفاق کے لیے، وہ کہتا ہے کہ بولی دینے والوں سے آپ نیگوشیٹ نہیں، حکومت نیگوشیٹ نہیں کر سکتی. خریدار حکومت ہے وہ نیگوشیٹ نہیں کر سکتی. یہ ہے the lowest evaluated bidder shall be awarded the contract. یعنی اس کے برعکس قانون پیپرا کے یہ کہتا ہے کہ جو lowest bidder ہے، یعنی سب سے کم بولی دینے والے کو shall be awarded contract. نہ may ہے نہ will ہے، shall ہے. یعنی حکمن یہ قانون کہتا ہے کہ خریدار یعنی حکومت پنجاب اس کیس میں shall award the contract، اس سے آپ نیگوشیٹ نہیں کریں گے. یہ بھی ہے اپنا دوسرا کہاں ہے یہ لمیٹیشن اور نیگوشیشن. یہ پیپرا رولز ہیں، دیکھ لیں پیپرا رولز ہیں، یہ لکھا ہوا پیپرا رولز. سیو ایز ادروائز پرووائڈیڈ ان دیز رولز
A procuring agency shall not negotiate with any of the bidders. यानी procuring agency यानी इस मद में हुकूमत पंजाब shall not, यानी shall का लफ्ज है कि वो बिडर से, बोली देने वालों से नेगोशिएट नहीं करेंगे। मगर मैंने इस कानून की धज्जियां उड़ाई। मैं इस जुर्म को मैं मानता हूं, मगर ये जुर्म मैंने पाकिस्तान के इस सबसे बड़े सूबे के करोड़ों आवाम के लिए जुर्म किया। और जब भी मुझे जिंदगी में मौका मिला, मैं ये जुर्म एक बार नहीं 1000 मरतबा करूंगा इस गरीब कौम की एक एक पाई बचाने के लिए। चुनाचे भाई आप मुझे बात करने देना। तो चुनाचे मैंने उनसे कहा, सबसे कम बोली देने वालों को, कि एक जो अरब 14 करोड़ की बोली थी कि आप 20% कम करें, उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने कहा आप बजाएं, छुट्टी करें, हम इंशाल्लाह दोबारा बिडिंग करेंगे। कहने ये ज्यादती है, हम सबसे कम लॉस बिडर हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं, हमारा हक है। कहनी आप नहीं कर सकते नेगोशिएट। मैंने कहा मेरे खिलाफ आप पर्चा दर्ज कर दें, मैं कर रहा हूँ नेगोशिएट इस कौम के भले के लिए। कौम का पैसा ये ना मेरा है ना आपका है, ये गरीब कौम का पैसा है, मांगे तांगे का पैसा है। चुनाचे अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जब वो दोबारा मीटिंग हुई तो वो फिर उन्होंने 1 अरब 14 करोड़ को सिर्फ 119 फिल्टर प्लांट्स के लिए, बहुत छोटी तादाद थी, 1 अरब 14 करोड़ को कम करके वो 98 करोड़ पे ले आए इसको। 98 करोड़ 90 लाख ये उन्होंने कीमत कम की, यानी 15 करोड़ रुपया उन्होंने इस मंसूबे में मेरी जिद पे कह लें, जिद कह लें, मेरा आई वॉज इंसिस्टिंग, आई वॉज परसिस्टिंग। इस गरीब कौम के लिए कानून कहता था कि आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, शैल नॉट नेगोशिएट लोस बिडर से। मैंने किया ये जुर्म एक दफा नहीं, और मैं इस तरह के हजारों जुर्म कर चुका हूं जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूं पिछले 3.5 साल से, जिसमें मैंने कई 100 अरब रुपए बचाए इस गरीब कौम के। और मैं हमेशा आपको कहता था उस खुदाए बुजुर्ग बरतर से डर के, बड़ी आजी से, करोड़ मरतबा नहीं अरबों मरतबा से डर के, कि मैंने इस कौम की, गरीब कौम का एक एक पाई मैंने बचाई है। और इन 10 सालों में जो कि मुझे नवाज शरीफ की लीडरशिप में इस सूबे की खिदमत का मौका मिला, तो मैंने कहा कि मैंने 3300 अरब रुपए खर्चे हैं पंजाब की, 3,300 अरब यानी 3.3 ट्रिलियन रुपए, 3,300 अरब रुपए इन 10 सालों में आवाम की खिदमत के लिए, चाहे वो PKLI है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो मेट्रो बस है, चाहे वो अपने पक्की सड़कों ते 100 के पेंडे है, चाहे वो हस्पताल हैं, चाहे वो तालीम के इदारे हैं। तो मैंने 1,056 करोड़ रुपए, 1,056 करोड़ रुपए मैंने बचाए इस तरह के सौदे करके। नेट सेविंग यानी सबसे कम बोली देने वाले से मैंने मजीद जो पैसे कम कराए। या फिर चिन्योट का आप जानते हैं वो खाम माल का एक खजाना है इस गरीब कौम का, जो कि मुशर्रफ ने अपने सेक्रेटरी के भाई को दे दिया। गैर कानूनी तौर पर वो अमेरिका में रहता था और मुफ्त बगैर किसी बिडिंग के। वो फिर मैंने 3.5 साल जंग लड़ी और उस खजाने को, कौम के खजाने को अदालत आलिया के फैसले से मैंने उसको अपना छुड़वाया, उस कब्जे को। और वो आज सुप्रीम कोर्ट के वो जज हैं, बड़े ऑनरेबल जज हैं, जिन्होंने फैसला दिया। उन्होंने कहा कि ये एक इस कौम के साथ खुला धोखा है। और उसको मैंने और पहला फिर जो फेज था, लंबी बात नहीं कर रहा, पहला फेज था उसकी सारी खुदवाई का या इन्वेस्टिगेशन का। तो पहले फेज में हमारे दौर वो मुकम्मल हुआ और वो $4 अरब का पहला फेज है। आज की अगर आप $4 अरब की आप रुपए की आप जो इक्वेशन उससे हिसाब लगवाएं तो ये बन जाता है कुछ तकरीबन 550-600 अरब रुपया। उस जमाने में चूंकि डॉलर 100 रुपए का था, तो वो 400 अरब रुपए सिर्फ चिन्योट के खजाने में मैंने बचाए इस गरीब कौम के, अल्लाह ताला के फजल करम से। और इस तरह बेशुमार मैं मिसालें मैं दूंगा, दे सकता हूं, लेकिन आज सिर्फ इसके ऊपर इत्तेफाक, ये जो ऑरेंज लाइन है, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान तो कभी बिडिंग ही नहीं हुई थी। कानून ये कहता है, पाकिस्तान का कानून, मैं नहीं कहता, कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, चाहे वो लोन्स हैं या वो ग्रांट है, उसके ऊपर बिडिंग नहीं होगी। ये कानून पाकिस्तान का है और 74 साल इस कानून पर अमल होता रहा और
इस कानून को तोड़ा तो मैंने तोड़ा। आगे पहली मरतबा 74 साल में ऑरेंज लाइन पे मैंने बिडिंग की। चीन की हुकूमत ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, ये तो आपके भाई नवाज शरीफ को आपको हमने तोहफा दिया है, और क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट करे, तो अब आप बिडिंग करिए। तो बिडिंग का तो कोई जवाब ही कोई नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, लेकिन मुझे पंजाब की असेंबली पूछेगी कि अब पंजाब के अवाम पूछेंगे जनाब कितने पैसे में लिया, किसी और जगह से लेते तो कितने पैसे में मिलता, इनसे लिया तो कितने पैसे में। इसलिए बिडिंग जरूरी है। चीन की हुकूमत की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने बिडिंग मान ली। जब बिडिंग हुई तो फिर लोएस्ट बिडर से मैंने वही जो मेरी बुरी आदत है, मैंने फिर कानून को तोड़ा और नेगोशिएट, यानी लोएस्ट बोली, सबसे कम बोली देने वाले से मैंने कहा कि आप पैसे कम करोगे। जी अब आपके तो पेपर और रूल्स को मैंने मान लिया, बिडिंग कर दी। अब आपके पेपर और रूल्स कहते हैं कि सबसे कम बोली देने वाले से आप मजीद नेगोशिएट नहीं कर सकते। मैंने कहा ये मुझे आदत पड़ गई है, जिस तरह एक भंगी को भंग पीने की आदत पड़ जाती है। मुझे इस कौम के एक धेले को बचाने की मेरे खून में ये बात है, मैं ये करूंगा, मेरी मजबूरी, ये कीमत ज्यादा है। बाहर क्या लंबी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने सबसे कम बोली देने वाले इस ऑरेंज ट्रेन में मैंने 70 अरब रुपए बचवाए। 70 अरब रुपए इस कौम के मजीद कम करवाए। नैब के हुकूमत खाने में नैब के जो नाइबीन थे वो कहते क्या जी, ये तो अपना चीन तो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है। मैंने कहा तो इसमें क्या दो राय है। कहने का मकसद ये है कि नैब न्याजी गठजोड़ ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे ऐसे बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें अहद चीमा शामिल है, जिसमें फवाद हसन फवाद शामिल है, जिसमें हमारी पार्टी के जोमा शामिल हैं, जिसमें मेरे खानदान के अफराद शामिल हैं। किस तरह नैब न्याजी गठजोड़ ने इस मुल्क की मईशत को, एतमाद को ठेस पहुंचाया और चीन जैसे मुल्क को नाराज कर लिया। फिर मेरे खिलाफ कहां कहां नहीं गए। चीन से जाके आपको याद है कि वो मुल्तान मेट्रो और यादेव का वो घोंसला जो एक टीवी पे चैनल पे दिन रात आज से 3.5 साल पहले चलता रहा कि $17 मिलियन शहबाज शरीफ खा गया। इमरान खान वो कागज लहराता था कि 27 अरब रुपए ले लिए उससे, जावेद सादिक से, और ये जाली कागज वो लहरा रहे थे। फिर मुझे 10 अरब रुपया मांग लिया जनाब, इसमें पनामा में वो केस अदालत में है, वहां पर उनके वकील ही नहीं आते और जवाब नहीं जमा कराते। कहने का मकसद ये है वो फिर अभी जो लंदन का NCA का जो इदारा है, नेशनल क्राइम एजेंसी, उसके बारे में मैं आप सब जानते हैं, वक्त नहीं जाया करूंगा। उसमें अभी 2 दिन पहले ये जो नई लीक्स आई हैं, जिसमें स्विस एक बैंक है क्रेडिट स्विस, उसमें पाकिस्तान के भी बाज लोगों के नाम आए हैं कि उनके पैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पड़े हैं। तो फिर वो मेरे हवाले से NCA ने स्विट्जरलैंड में जाके चेक किया, मुझे भी उसका इल्म नहीं था। वो जब लंदन की अदालत से जो कोर्ट पेपर्स जो सामने आए, वो कई सौ, तकरीबन 500-700 पेपर्स हैं, उनमें फिर पता चला कि मैंने जो अपने वहां पर वकील को फीस दी थी, ये जो डेली मेल के खिलाफ मैंने जो मुकदमा दायर किया हुआ है, उस हवाले से भी वो उन्होंने अपना कहा कि ये चेक करवाएं स्विट्जरलैंड से पैसे कहाँ से हैं, इसके पीछे कोई शरीफ नाम का तो कोई नहीं है। वहां से फिर राइटिंग आया स्विट्जरलैंड से कि शरीफ नाम का इस अकाउंट में, इसके पीछे कोई नहीं है। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम, उससे डरना चाहिए हर वक्त, उससे रहम मांगना चाहिए। हम बहुत खताकार इंसान और मैं सबसे खताकार तरीन इंसान हूँ, हर वक्त रब ताला से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैंने अवामी खिदमत में नवाज शरीफ की लीडरशिप में अल्लाह ताला के फजल करम से अपना खून और पसीना दिया है। मैं कब्र में चला जाऊंगा, याद रखे, मैं बड़े अदब से उस मालिक से डर के मैं कहता हूँ, कब्र में चले जाऊंगा अगर मेरे खिलाफ एक धेले की अवामी पैसों में एक धेले की करप्शन साबित हो जाए, तो कब्र से निकाल कर मुझे आप एक तख्तादार पर लटका दीजिएगा सजा के तौर पर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 3.5 साल गुजर गए हैं, उल्टे हो गए हैं, उल्टे ये इमरान न्याजी गठजोड़ उल्टे हो गए हैं और दिन रात बोहतान लगाते हैं। कभी फलाना चाय वाला, भाई तुम्हारे वो चाय वाले जो हैं अपना फॉरेन फंडिंग वो कहाँ गए? वो काली चाय पीते हैं या दूध वाली चाय पीते हैं? वो सवाल ये पैदा होता है कि अब किसी पे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांको। और जिस तरह करप्शन तुम्हारे घर में हो रही है इमरान खान न्याजी, जिस तरह करप्शन तुम्हारे सरकारी ऐवानों में हो रही है, चाहे वो LNG गैस के हैं, चाहे वो जो इम्पोर्ट की गई
पहले शुगर एक्सपोर्ट की गई, अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई, फिर अरबों डॉलर खर्च करके इंपोर्ट की गई, फिर गंदम एक्सपोर्ट की गई, फिर गंदम इंपोर्ट की गई, और फिर LNG को जो महंगे दामों खरीदी गई, वक्त पे आपने LNG ना खरीदी, अरबों खरबों किधर जाएंगे? ये मालूम जब्बा किधर जाएगा? आपका हेलीकॉप्टर केस कहाँ गया? वो अपना 1 अरब दरख्तों का केस कहाँ गया? ये दिन रात जो करप्शन होती है, अद्वियात का मिनिस्टर तो आपने हटा दिया, उसकी जो करप्शन वो कहाँ गई? इस हवाले से आपको कौम को जवाब देना होगा, और इंशाल्लाह वक्त आएगा कि कौम आपसे एक एक पाई का हिसाब लेगी। शहबाज साहब, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अगर बात करें तो आपकी हालिया चंद रोज में बड़ी अहम मुलाकातें हुई, आसिफ अली जरदारी से, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान से और चौधरी बरादरान के घर भी गए। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से नंबर गेम पूरी हो गई है, और अगर पूरी हो गई है तो कब लेकर? देखिए, बात यह है कि तहरीक अदम एतमाद जो है, ये अदम एतमाद, तो ये तहरीक अदम एतमाद जो है, ये हम पाकिस्तान के जो 22 करोड़ आवाम हैं, उनकी जो ख्वाहिश है, आप उनके पेश नज़र हम ये कर रहे हैं कि इस हुकूमत ने गरीब आवाम का भरकस निकाल दिया है। वो एक वक्त की रोटी से वो इस वक्त वो कासर है, जिंदगी उसके ऊपर तंग है। बीमार माँ या बाप या बहन के लिए दवाई नहीं ला सकते, तालीम के लिए पैसे नहीं हैं, दूध पीते बच्चे के लिए पैसे नहीं हैं। आसमान से इस वक्त महंगाई बातें कर रही है, गुर्बत और बेरोजगारी आसमान से बातें कर रही हैं। इसलिए हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर हमने ये फैसला किया है कि हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे। ये एक हमारा आईनी हक है, हमारा सियासी हक है। इस हक को इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा तो आपको बता देंगे। शहबाज साहब, आप समझते हैं कि मईशत पहले ही डूब चुकी है? जो अभी चेंज आया है, आप क्या समझते हैं कि पहले ही मईशत जो है वो डूबी हुई है, और आप 1 साल के लिए आकर इस मईशत को कैसे जो है वो सहारा दे सकेंगे? दूसरी जानिब एतजाज हसन कहते हैं, आपको किसने कहा कि मैं 1 साल के लिए आऊंगा और मैं आऊंगा? ये तो अल्लाह ताला को इल्म है। लिया जा रहा है कि आपको वो जो नाम ले रहे हैं, न जाने कौन ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। ये सब खुदा के हाथ में है, अगर सब अल्लाह के हाथ दे दिया जाए तो आप किस तरह इस मईशत? वो मेरी पार्टी की लीडर नवाज शरीफ हैं, कायद हैं पार्टी, वो मशावरत करके फैसला करेगी। जो वो हुक्म देंगे मैं करूँगा। सर, ये जो फॉरेन पॉलिसी में अभी एक चेंज आया है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी दौरा किया है, क्या आप इस चेंज को सही समझते हैं कि पाकिस्तान रशियन ब्लॉक की तरफ? नहीं, देखिए, हमें अपनी दुनिया के अपना जो ममालिक हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारे हमसाया ममालिक हैं या कुर्ब जवार में हैं, उनसे हमें ताल्लुकात ठीक करने में यकीनन बहसीत कौम अपना रोल अदा करना चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं समझता हूँ कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। मुझे निशाना बनाकर कौम के सामने रुस्वा करने की कोशिश की गई। अवाम की पाई पाई बचाने के लिए कानून तोड़ा, और आइंदा भी 1000 बार ऐसा करूंगा। नैब न्याजी गठजोड़ ने मुल्क की मईशत को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ लाहौर में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे।